Good morning to everyone. I am Krishan Kumar from Asura School, Rewadi. Students, our previous lecture on chapter 6, triangles, and today we start the next exercise, exercise 6.3. Let's start, student. Dear students, I hope you all are fine with your family. Okay, we start today's subtopic of the chapter triangles, that is the criteria for similarity of triangles. So बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे व्हेन वी से द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सो बेटा टू ट्रायंगल्स are similar if first is their corresponding angles are equal, and second is beta their corresponding sides are proportional. It means beta when we say two triangles are similar, first is their corresponding angles are equal. Corresponding angle equal होना चाहिए, and second is their corresponding sides are proportional. Proportional means beta ratio of sides are equal. Okay, and today our subtopic is the beta criteria for similarity. यहाँ पर बेटा हमारे पास सम क्राइटेरियाज हैं फॉर सिमिलरिटी. लेट्स सी, जिसके अंदर बेटा अपना फर्स्ट क्राइटेरिया आता है यहाँ पर ए. फर्स्ट ए इज ए. इसको ट्रिपल ए भी बोलते हैं बेटा. क्राइटेरिया ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन मीन्स बेटा यहाँ पर हमारे पास सपोज टू ट्रायंगल्स आर गिवन. ट्रायंगल ए बी सी and triangle PQR. Two triangles are given. So beta, yes beta, we have these two triangles are given A B C and that is the PQR. So beta कोरस्पोंडिंग एंगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी पॉइंट टर्म कोरस्पोंडिंग पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. कोरस्पोंडिंग मींस एंगल ए इज इक्वल एंगल, मोस्टली स्टूडेंट्स से एंगल P, बट दैट इज नॉट कंफर्म, नॉट क्लियर. Angle A is equals any one of this triangle, not a P. Some students are check it is the vertical angle, so in this triangle vertical angle is equal to A. No beta, any one angle of second triangle is equal to A. So I am here assume angle A is equal Q. Angle A is equal Q. Angle B
angle B is equals its corresponding angle is a any one out of these two. रिमेनिंग टू एंगल्स में से बेटा कोई भी एक एंगल इसका कोरस्पोंडिंग एंगल होगा. सो हमने ये बेटा यहाँ पर इसका कोरस्पोंडिंग एंगल लिया है एंगल आर एंड एंगल सी इज इक्वल टू आ रिमेन वन एंगल पी. सो बेटा here is a angle A is equals angle Q, angle B is equal angle R and angle C is equal angle P. Yes beta, clear? So corresponding angles are equal. Then beta we say that by AAA criteria, triple A similarity criterion, we say that these two triangles are similar. According to according to definition of similar triangle, corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. तो यहाँ पर तो साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं दिखाई है बेटा, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया है इफ द all angle of a one triangle are equal to their corresponding angle in the another triangle, then by the triple A similarity criteria we say that these two triangles are similar. Okay students, इनके बेटा ये अपने पास जो है थ्योरम है, इनके प्रूफ भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. बट फर्स्टली हम इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए पहले मेन कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं बेटा. ब्रीफली अब अपना ये यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं. जब अपनी क्लासेस कंटिन्यू होंगी तब बेटा आपको ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी हम आप एक्सप्लेन करेंगे. सो बेटा हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC, triangle ABC similar बेटा, that is the sign of similarity. ये सिंबल किसका है बेटा, सिमिलरिटी का, सिमिलर टू ट्रायंगल. सो बेटा A का कोरस्पोंडिंग एंगल Q, so first place is a Q, B corresponding angle is a R, Q, R and C corresponding angle is a P. Then we say that triangle ABC is similar to triangle QPR. Yes student, clear that? That is a similar. Sign of similar triangle. Yes, I hope triple A or AAA similar criterion you are clear. Yes beta, next is the B. B is a double A similarity criterion. In this beta, two angles of a triangle are equal to the corresponding two angles of another triangle, then we say that by AA similarity criterion given triangles are similar, because beta by the angle sum property third angle is equal the third angle of the another triangle. So beta that is the B similarity criteria. Suppose triangle ABC and
triangle PQR, in which angle A is equal angle P and angle B is equal angle Q. So बेटा by angle sum property angle C is equal angle R, because बेटा angle A and B is equals angle A is equals P and angle B is equals Q. It means the remain third angle value of a one triangle is equal the another third angle. So here is the by a similarity criterion. We say that these two triangles are similar. So these two triangles write as triangle ABC, that is the sign of similar. Triangle PQR, third C is a SSS, triple S similarity criterion. SSS similarity criterion में बेटा क्या होता है? Suppose we have a two triangle ABC and triangle PQR, in which कोरस्पोंडिंग साइड रेशियो, देखो बेटा डेफिनेशन क्या कहती है सिमिलरिटी की, यहां पर हमने बताया था आपको टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, फर्स्ट देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द सेकंड इज देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ये दोनों केस सेटिस्फाई होने चाहिए, देन वी से दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन बेटा अगर हमारे पास कोई साइड का जो रेशियो है प्रोपोर्शनल है अपने पास, जैसे कि इन विच बेटा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल ए सी अपॉन पी आर, देन बेटा रिमेनिंग सेकंड कंडीशन यानी कि एंगल्स प्रोपोर्शनल एंगल्स आर वी प्रूव they are equal. So directly we say that SSS similarity criterion, these two triangles are similar. So triangle ABC similar to triangle PQR. जैसे बेटा हमने कॉन्ग्रेंसी की क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंसी के रूल पढ़े थे, डायरेक्ट हम अप्लाई करते थे बट उनका प्रूफ अलग से किया जाता था. सेम एज इट इज ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया है बेटा, इनका प्रूफ भी है बेटा. हमारे पास अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल. सो बेटा हम डायरेक्टली यहां पर कह सकते हैं फिर SSS सिमिलरिटी से ये सिमिलर होंगी. एंड लास्ट इज द D, SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया. सिमिलरिटी क्राइटेरियन इट्स मीन्स बेटा क्या होगा, अपने पास टू साइड्स प्रोपोर्शनल होगी एंड कोई एक एंगल इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, बट वो एंगल क्या होना चाहिए, साइड से इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए. जैसे कि बेटा अपने पास मैंने यहाँ पे लिखा टू ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. सो बेटा अपने पास एंगल A इक्वल है एंगल P के, गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है. और इसी के साथ साथ अपने पास साइड्स प्रोपोर्शनल गिवन है. साइड्स प्रोपोर्शनल गिवन है क्या, कौन सी, जो इस एंगल को इंक्लूड करती है, इंक्लूड करती है. इट्स मीन्स बेटा
AB अपॉन PQ इज इक्वल AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। जैसे कि बेटा अपने पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, these two triangles are given here, triangle A triangle ABC and PQR, ABC and PQR, ये ट्रायंगल हमें गिवन है। एंगल A इक्वल है P के, सो एंगल A इज इक्वल P। सो बेटा इस एंगल को इंक्लूड करने वाली यानी इस एंगल को फॉर्म करने वाली जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है बेटा AB अपॉन PQ, AB इस एंगल A को फॉर्म करने वाली है, PQ इस एंगल को, एंड AC PR यानी कि एंगल कैसा हो गया बेटा, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल है तो इट्स मीन्स बेटा हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलरिटी क्राइटेरिया से के अकॉर्डिंग बेटा हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, therefore triangle ABC similar to triangle, देखो बेटा एंगल A इक्वल है P के, A का प्लेस है फर्स्ट तो यहाँ पर P का भी फर्स्ट होगा। अब बेटा AB फर्स्ट सेकंड, AB फर्स्ट सेकंड PQ, सो बेटा सेकंड पर क्या आएगा QR सिमिलर। सो बेटा अपने पास ये तीन क्राइटेरिया है। फर्स्ट अपना ए जिसको हम ट्रिपल ए कहते हैं, सेकंड बेटा ट्रिपल एस साइड साइड साइड, एंड थर्ड इज SAS साइड एंगल साइड। मेन दीज थ्री क्राइटेरियाज हैं बेटा, एंड द क्राइटेरिया नंबर बी डबल ए इज अ कोरोलरी ऑफ ट्रिपल ए रूल, डबल ए इज अ कोरोलरी ऑफ ट्रिपल ए रूल। ओके बेटा, let's start the exercise. Yes students, exercise 6.3 question number first is say state which pair of the triangle in the figures are similar. Write the similarity criterion used by you for the answering the question, and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. So बेटा अपने पास ये मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स 4 क्वेश्चंस इसके लिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के 4 पार्ट्स लिए हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया किसको फॉलो करते हुए सिमिलर है, और हमें उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। सो देखिए बेटा, ये है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने चेक किया एंगल A 60 डिग्री, एंगल P 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल A इज इक्वल एंगल P, 80 डिग्री B है, 80 डिग्री Q है, सो एंगल B इज इक्वल एंगल Q, एंड C इज अ 40 एंड द एंगल R इज 40। सो बेटा कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। सो हम क्या कह सकते हैं, बाई ट्रिपल ए रूल ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, एंगल A किसके इक्वल है P के, सो P का फर्स्ट प्लेस क्योंकि A का फर्स्ट प्लेस है, B किसके इक्वल है Q के, सो Q का सेकंड प्लेस, एंड थर्ड R। ये बेटा हमने क्राइटेरिया जो यूज किया है वो राइट किया है, ये हमने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। यही सब में हमसे कंसल्ट किया गया है कि कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो हो रहा है, और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिएगा। आई होप यू आर अंडरस्टूड। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। यहाँ पर बेटा हमें एंगल्स नहीं गिवन है, साइड्स गिवन है। साइड्स गिवन है तो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्कैनिंग करेंगे, और स्कैनिंग करके ये डिसाइड करेंगे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है दोनों ट्रायंगल्स में, लार्जेस्ट कौन सी है, और मिडिल साइड कौन सी है। उसके अकॉर्डिंग हम बेटा रेशियो फाइंड आउट करेंगे, रेशियो फॉर्म करेंगे। यहाँ पर तो हमने चेक किया 2, 3 एंड 2.5, यानी कि 2, 2.5 एंड 3।
सेकंड पार्ट में बेटा हमने इस चेक किया इस सेकंड ट्रायंगल में स्मॉलेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड, मिडिल साइड। इट्स मींस बेटा मैंने यहाँ पे रेशियो निकाला सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट साइड का ए बी के अपॉन में इस ट्रायंगल की सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्यू आर। ए बी इज a 2, QR is a 4, this is 1 upon 2। सेकंड बेटा मिडिल साइड BC अपॉन में इसकी मिडिल साइड PR is equal 2.5 upon 5, that is again a 1 upon 2। and next is a largest side AC upon में PQ 3 upon 6, that is 1 upon 2। इट्स मीन्स बेटा ऑल रेशियो आर इक्वल, दे आर प्रोपोर्शनल। तो कौन सा रूल लग गया बेटा? बाई ट्रिपल एस रूल। ट्रायंगल, पहले किसी भी एक ट्रायंगल को किसी भी वे में लिख लेंगे ABC सिमिलर। अब बेटा यहाँ पे लिखते समय है ना, जब अपने पास साइड्स गिवन होती है, प्रोपोर्शनल गिवन होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है देखिएगा, हम वो एक बार आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रॉब्लम आती है कि सेकंड ट्रायंगल को किस वे में लिखे। एंगल में तो डायरेक्ट क्लियर हो जाता है, A इज इक्वल्स P, सो A फर्स्ट प्लेस पे है तो P को भी फर्स्ट प्लेस दे देंगे, B सेकंड प्लेस पे है तो Q को भी सेकंड प्लेस दे देंगे। सेम एज इट इज बेटा यहाँ पे अब कैसे लिखें, तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल पेंसिल से लिख के दिखा रहा हूँ। ए बी के रेस्पेक्ट में क्या है बेटा? क्यू आर को बेटा हम क्यू आर भी लिख सकते हैं और ये आर क्यू भी लिखा जा सकता है। यस अब देखिएगा बेटा सेकंड थर्ड से देखेंगे। बी सी किसके इक्वल है? पी आर के। ठीक है, हम यहां पर हमने दो लेटर ऑलरेडी, दो वर्टिसेस ऑलरेडी लिख चुके हैं, थर्ड वर्टिस भी लिख देंगे। क्या बचा है? पी। अब बेटा सेकंड थर्ड से यहां से चेक करेंगे। बीसी किसके रेस्पेक्ट में है? पीआर के। तो पीआर कहां से बन रहा है? सेकंड थर्ड पर। यहां पर सेकंड थर्ड पर क्या बना बेटा? क्यूपी। इट्स मींस ये तो रॉन्ग हो गया, यहां से बीसी जो है वो क्यूपी को इक्वल दिखा रहा है। इट्स मींस बीसी किसके इक्वल आ रहा है? यहां पर पीआर के। इट्स मींस ये वे सही है, क्यूपी आर। और ये हमने इसको सिंबॉलिक लिख दिया बेटा। सो सिंबॉलिक हमने राइट कर दिया है। तो ये अपने पास हो गई ABC इज सिमिलर टू QRP। ये हमने यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज किया है SSS, और ये हमने इसको सिंबल की फॉर्म में राइट किया है। ओके स्टूडेंट, सेम एज इट इज बेटा इस थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट को करने के लिए देखिएगा बेटा सबसे स्मॉलेस्ट साइड 2 और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट साइड 4। मैंने रेशियो निकाला MP अपॉन में क्या आएगा? DE। MP अपॉन में DE 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2। ओके बेटा नेक्स्ट रेशियो मैं निकाल रहा हूं मिडिल साइड का। मिडिल साइड है LM अपॉन में इसका मिडिल साइड EF। LM इज a 2.7 एंड EF इज a 5। सो बेटा यहां से ये कैंसिल नहीं हो रहा है, और रेशियो इट्स मींस रेशियो आर नॉट इक्वल। तो बेटा ये अपने पास सिमिलर नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? LMP एंड DEF आर नॉट सिमिलर। ओके बेटा, ये हमने सिक्स्थ पार्ट लिया है बेटा। यहां पर देखिएगा 2 एंगल्स गिवन है। हाउ मच एंगल्स आर गिवन? 2। सो बेटा हम फर्स्टली क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी कैलकुलेट कर लेंगे। इस ट्रायंगल में बेटा एंगल F इक्वल होगा 180 माइनस सम ऑफ दीज 2 एंगल 80 प्लस 70। इट्स मीन 180 माइनस 80 प्लस 70 150। सो बेटा एंगल F इज इक्वल 30। एंगल F की वैल्यू क्या आ गई? 30।
नेक्स्ट यहाँ से बेटा एंगल पी फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल पी इज इक्वल्स 80 प्लस 30, इन दोनों के एंगल के सम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 180 माइनस 80 प्लस 30 इज 110 एंड एंगल पी इज इक्वल 70 डिग्री। सो ये बेटा हमने यहाँ पर एंगल फाइंड आउट किए जो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाले। एफ एंगल अपने पास 30 डिग्री का मेजरमेंट आया है इसका, और यहाँ से एंगल पी का मेजरमेंट है 70 डिग्री। ओके बेटा, चेक करते हैं। एंगल्स गिवन है तो एंगल वाली क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो होगी। सो एंगल वाली क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे बेटा कौन से एंगल इक्वल है या नहीं है। तो बेटा देखिएगा, एंगल D is 70 degree. In this triangle, angle P is 70. So D is equal P. Okay. Angle E is 80 degree. Angle E is 80 degree और यहाँ से एंगल Q जो है वो 80 है, is equal angle Q. Angle F is equal एंगल F30 है, यहाँ पर R30 है। इट्स मीन्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। सो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया, बाई ट्रिपल ए रूल। ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बेटा, किसी एक ट्रायंगल का नाम हम किसी भी वे से लिख सकते हैं। मैंने लिखा DEF, सिमिलर ट्रायंगल। बेटा डी एंगल इक्वल है पी के। सो फर्स्ट पर डी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेकंड ट्रायंगल में फर्स्ट पर पी। ई एंगल इक्वल है क्यू, पी क्यू एंड आर। ये हमने यहाँ पे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, ये इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज हुआ है। बेटा सेम एज इट इज आप इस क्वेश्चन फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट सोल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? यस yes beta, that is the second question of exercise 6.3. that is the diagram, and we have a given ODC triangle is similar to triangle OBA. Okay, angle BOC 125 and angle CDO 70 degree, and to find DOC angle, DOC इट्स मीन्स दिस एंगल। कौन सा एंगल हमें फाइंड आउट करना है बेटा, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड DCO दिस वन इज फाइंड आउट, एंड थर्ड इज द OAB दिस वन। सो बेटा ये 3 एंगल्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन बेटा। सॉल्यूशन में क्या होगा अपने पास, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम यहाँ पर लीनियर पेयर अप्लाई करने जा रहे हैं। कौन सा पेयर अप्लाई कर रहे हैं, लीनियर पेयर, बिकॉज DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। DOB is straight line. So बेटा एंगल DOC plus 125 degree is equal 180 linear pair एंगल्स। सो बेटा लीनियर पेयर एंगल के लिए हमने एब्रीविएशन क्या यूज किया था, LPA'(S), लीनियर पेयर एंगल्स। यस, सो बेटा अपने पास एंगल DOC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री।
एंड 180 डिग्री में से 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गॉट द वैल्यू 55 डिग्री। यस 55 डिग्री। सो बेटा अपना एक एंगल डिफाइन हो चुका है, यहाँ पर फाइंड आउट हमने कर लिया है। नेक्स्ट एंगल अपना हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से बेटा एंगल DCO को फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल DCO 70 डिग्री प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD इज इक्वल 180 डिग्री। ओके बेटा 70 डिग्री प्लस DOC की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल OCD इज इक्वल 120 डिग्री। एंगल OCD इज इक्वल 180 माइनस, बेटा इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये अपने पास वैल्यू आएगी 125 का ट्रांसपोज कर देंगे 125 एंड एंगल OCD इज इक्वल अगेन 55 डिग्री। ये बेटा हमने सेकंड एंगल फाइंड आउट कर लिया इस सम का। अपने पास थर्ड एंगल बचा है OAB। नाउ triangle ODC similar to triangle OBA। सो बेटा सिमिलर ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। सो बेटा हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, OAB थर्ड एंगल OAB एंगल इज इक्वल, देखो बेटा OAB फर्स्ट थर्ड सेकंड, यानी कि थर्ड वाला एंगल है, मिडिल में कौन सा है, ए पार्ट, ए किसके इक्वल होगा, सी के, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे OCD दिस वन इज दैट इज OCD दैट इज इक्वल 55 डिग्री। यस स्टूडेंट, सो बेटा आपने 3 एंगल्स जो हैं वो यहाँ पर फाइंड आउट हो चुके हैं। फर्स्ट आंसर दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस, ऑल एंगल्स आर इक्वल। Okay students, that is sufficient for today. Okay, bye student.